کہ جہاں نواز شریف 2 دفعہ ٹرائل ہوئی ہے ان کی، 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، دونوں دفعہ فیل ہوئے ہیں. ہندوستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کو براؤ بیٹ کرے، دبائے، ڈرائے، دھمکائے. دیکھیں یہ ہماری جینز میں نہیں ہے. اٹیک آتا ہے اسی وقت کاؤنٹر مارو، ادھر انڈیا میں ٹارگٹ سلیکٹ کر لو اور صبح سویرے دوسری جگہ. Slippages or poor performance by the intelligence are possible. If you reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep, the most powerful organization? پاکستان کی تاریخ میں کچھ لمحے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ملک کی تقدیر کو یکسر بدل دیا. 12 اکتوبر 1999 کا دن بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جب پاکستان کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا. اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں فوجی جنتا نے ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جما لیا. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. یوں جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں پاکستان کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہوئی. جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا اور دور اقتدار کی کہانی جاننے سے پہلے جانتے ہیں کچھ ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق. پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں نہر والی حویلی کے نام سے مشہور عمارت میں پیدا ہوئے. تقسیم ہند کے وقت ان کا خاندان کراچی منتقل ہوا. ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے منسلک تھے. یہ 1949 سے 1956 تک کا زمانہ تھا جب ان کے والد ترکی کے شہر انقرہ میں تعینات تھے. پرویز مشرف عمر کے ابتدائی سالوں میں والد کی پوسٹنگ کے دوران انقرہ میں رہے. ان کے بعد کراچی میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی. پرویز مشرف اپنی خود نویس سب سے پہلے پاکستان میں لکھتے ہیں کہ کراچی میں اس دور میں اچھے کالجز کی کمی تھی. والدین نے لاہور کے ایف سی کالج کا انتخاب کیا جو امریکی عیسائی مبلغوں کے زیر انتظام تھا. انہوں نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی. 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا. پرویز مشرف ان افسران میں سے تھے جنہیں بہادری کی اعزازی اسناد بھی دی گئیں. انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس سٹڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے. اپنے ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف نے کئی کمانڈز اور تربیتی سربراہ کے عہدوں پر کام کیا اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے اہم ترین عہدے پر بھی فائز رہے. انہیں فوجی تاریخ میں کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. مشرف نے اپنی مہارت کے ذریعے جلد ہی فوجی سیڑھیوں کو تیزی سے عبور کیا اور پاکستان کے دفاعی ڈھانچے میں ایک اہم شخصیت بن گئے. مذاق مت کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ماریں گے ایٹ ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ. 1991 میں انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی. 7 اکتوبر 1998 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کے مستعفی ہونے کے بعد جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کیا گیا. وہ پاک فوج کے 13ویں آرمی چیف تھے. 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی سیاست میں ایک نئے موڑ نے رخ لیا جب اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا کر اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو پاک فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا. کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کئی سینئر فوجی جرنیلوں کو نظر انداز کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے کے لیے چنا تھا.
कारगिल जंग के मामले पर मुशर्रफ और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हुआ। इस तनाज़े के नतीजे में जहां नवाज शरीफ ने उनको हटाने का फैसला किया, वहां फौज ने भी अपने सरबराह की क़यादत में मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया गया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। I request you all to remain calm and support your armed forces. तारीख पर नजर डाली जाए तो जनरल परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार में आना अपने पेशरो जर्नलों से कुछ मुख्तलिफ था। जनरल अयूब खान और जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त हुकूमत का तख्ता उल्टा जब वो खुद मुल्क में थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे। परवेज मुशर्रफ अपनी सवाने उमरी में लिखते हैं कि उनका हवाई जहाज 7:48 पर कराची के हवाई अड्डे पर उतरा और इससे चंद मिनट पहले यानी 7:45 तक ऑपरेशन रिजीम चेंज मुकम्मल हो चुका था। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके जिला वतन किया गया और मुल्क में 10 साला फौजी हुक्मरानी का आगाज हो गया। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुशर्रफ ने अपनी तकरीर में मेरे अजीज हमवतनों तो नहीं कहा, लेकिन अपनी अंग्रेजी में महारत का फायदा उठाते हुए माय डियर कंट्रीमैन कहा और एहतसाब सबसे पहले रखते हुए अपनी हुकूमत का साथ निकाती एजेंडा भी पेश किया। मुशर्रफ ने दावा किया कि उनका इक़दाम पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम को दवाम देने के लिए जरूरी था। इक़्तिदार में आते ही मुशर्रफ ने तेजी से मुल्क पर अपना कंट्रोल मजबूत कर दिया। नवाज शरीफ की ही पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायम की गई, जिसने उनके इक़्तिदार को दवाम देने में मरकजी किरदार अदा किया। 20 जून 2001 को परवेज मुशर्रफ मुल्क के सदर बने। 20 अप्रैल 2002 को मुल्क में परवेज मुशर्रफ के हक में एक रेफरेंडम का इनेकाद करवाया गया। साल 2004 में असेंबली से मुस्लिम लीग काफ की हिमायत से आइन में 17वीं तरमीम करा के मजीद 5 साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब हो गए। परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क में एक नए दौर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत की ताकत को मरकजी हैसियत दी। उनके इक़दामात में इक़्तिसादी इस्लाहात, इंसदादी दहशतगर्दी के क़वानीन और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात में तब्दीलियां शामिल थीं। परवेज मुशर्रफ ने मईशत में इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश की। उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाया और अमरीका के साथ ताल्लुकात की नई बुनियाद रखी। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पाक भारत ताल्लुकात में आगरा समिट भी अहम रहा। 9/11 हमले के बाद अल-कायदा के खिलाफ अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश भी कबूल की, जिसके बाद अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई तवानाई आई। I are absolutely committed to fighting off the terrorists who would destroy lives in Pakistan or the United States or anywhere else. President Musharraf, and I am very pleased with his efforts and his focus. और इसके नतीजे में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर इमदाद और हमायत तो हासिल हुई, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान में एक मुतनाज़े मसला बन गया, क्योंकि बहुत से अफराद ने मुशर्रफ के इस इक़दाम को कौमी मुफाद के खिलाफ करार दिया। फौजी हुक्मरानी के दौरान मुशर्रफ को सियासी मुखालिफिन, जजेस और सहाफ़ियों से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 2007 में मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज फूट पड़ा। ये एहतजाज एक नई तहरीक में बदल गया, जिसे वकला तहरीक के नाम से जाना गया। मुशर्रफ के यारों को एक धक्का और दो। वकला की तहरीक और मुल्क भर में बढ़ते हुए सियासी दबाव ने मुशर्रफ की हुक्मरानी को शदीद खतरे में डाल दिया। 2007 में उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की,
जजेस को बरतरफ किया और मीडिया पर सख्त पाबंदियां आयद की। ये मुतनाज़ इक़दाम, जिसका मकसद अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करना था, दर हकीकत उनके ज़वाल की इब्तदा बन गया। साल 2008 तक उनकी मकबूलियत तेजी से गिर चुकी थी और पाकिस्तान अब उनकी आमराना हुक्मरानी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। 2008 के इंतखाबात में मुशर्रफ के हामियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट दिया और परवेज मुशर्रफ को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। यूं उनका इक़्तिदार एक तवील और मुतनाज़े दौर के बाद खत्म हो गया। मुशर्रफ ने अपने इस्तीफे के बाद खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की और मुल्क से बाहर लंदन और दुबई में सुकूनत इख्तियार की, लेकिन उनकी वापसी के इम्कानात हमेशा ज़ेरे बहस रहे। साल 2013 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आए और सियासी मैदान में दोबारा किस्मत आजमाई की कोशिश की, लेकिन उनकी वापसी मुख्तसर साबित हुई। अपनी जान खतरे में डाल के वापस आया। उनको मुतादिद कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें 2007 की इमरजेंसी के निफाज के केस में संगीन गद्दारी के इल्जामात शामिल थे। 2019 में मुशर्रफ को गद्दारी के जुर्म में उनकी अदम मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई गई। ताहम 2020 में ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मुशर्रफ दौर के मुतनाज़ इक़दामात में पाकिस्तान में हुदूद ऑर्डिनेंस में तरमीम, जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद ऑपरेशन, कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस जिसे आम तौर पर NRO कहा जाता है, मुशर्रफ दौर के मुतनाज़े फैसले और इक़दामात माने जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान ऑपरेशन, आफिया सिद्दीकी का मामला, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्जामात और नजरबंदी भी मुतनाज़े रही। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और 12 मई का सान्या भी पेश आया, जबकि उनकी अपनी जिंदगी पर भी मुतअद्दिद जानलेवा हमले हुए, जिनमें GHQ के करीब होने वाला हमला बहुत ही संगीन था। उनका इंतकाल 5 फरवरी 2023 को दुबई के अमेरिकन अस्पताल में तवील अरसे तक एम्प्लाइडोसिस के मर्ज में मुब्तला रहने के बाद हुआ। उनको कराची के फौजी इलाके मलीर कैंट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत एक मुतनाज़े पेचीदा दौर होने के साथ साथ अहम तरीन दौर भी था, जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख पर गहरे असरात छोड़े। उनकी तर्ज हुक्मरानी एक ऐसा मौजू है जिस पर पाकिस्तान की अवाम आज भी बहस करते हैं। मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ होगा, हमेशा आपके बारे में सोच रहा होगा। पाकिस्तान का खुदा हाफिज।